All right. Yes. So yes, low graduation rates in urban areas. Do you understand what are the urban areas? No, नहीं नहीं पता? नहीं मैम, पता है। बताएं फिर। शहर। Yes, good. Is इंडस्ट्रियल एरियाज। industrial areas, very good. So they are termed as the urban areas. So do you think that there is low graduation rates? Yes, miss. Yes, very good. So and can you see the adverse effect of this low rate in the society or in the urban areas? Yes, miss. यस। क्या क्या देखते हैं? What are those effects? मिस एक तो पॉवर्टी फिर इसकी वजह से बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इधर हाई होता है, क्राइम्स बढ़ते हैं, Right, good. और इसके अलावा आपकी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से तरक्की नहीं करती, क्योंकि पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो कैसे आएगी तरक्की। Excellent. Very good. Very good. And most of the people, complain that we are jobless. But the reason behind it, that they are either they are not having the degree or possibly they don't have the skill, यस मिस। अंडर क्वालिफाइड होते हैं। underqualified होते हैं. अच्छा, I see people around me, a lot of people, they do complain that यहाँ पे तो पर्ची चलती है और यहाँ जो है वो jobs नहीं मिलती and फला धमाका, मतलब they keep on complaining. However, I can say that if you are if you are doing something, और अगर आपके पास कोई skill है and if you are putting effort in doing something, so it's a guarantee that you won't be a jobless person and you would definitely find something to do. लेकिन अब हम करते अपने साइड से कुछ नहीं है, बट वी ओनली कंप्लेन. तो येस, इट हैपन्स अराउंड अस कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो क्या कहते हैं, कंप्लेनिंग साइड पे हम जा रहे होते हैं, बट वी डोंट फिगर आउट आवर ओन फॉल्ट्स. तो एंड what are the causes? What could be the cause of this low graduation rate, according to you? What could be the cause? मिस हाई फीसेस। High fees, very good. And बैकवर्डनेस एंड कंजर्वेटिवनेस। yes, of the मैं जब पैसे society. नहीं होंगे जब पैसे नहीं होंगे तो लैक अपने ऑफ बच्चों को फैमिली पढ़ाएंगे कैसे? सपोर्ट। Yes, financial issues बिल्कुल. और ऐसा ऐसा ही है कि there are certain families who also face financial problems. So though they themselves, however, they want their children to study, but because of their poor financial status, they they don't ask or they recommend their children to continue doing jobs instead of their studies. फैमिली बैकग्राउंड। Family background also matters. And do you agree with this that still in the urban areas we have some communities which don't let their child or female children यस Yes. यस। यस। studies, यस। right? So there are so many families. So माइंडसेट यार। sorry. बैकवर्डनेस हो ही आ गई ना, बिल्कुल मतलब backward. कंजर्वेटिवनेस आ गई। बिल्कुल. अच्छा, नहीं, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि बैकवर्ड जो है वो मेल्स के लिए भी होते हैं ना. वो कहते हैं क्या करना है ना पढ़ लिख कर, मतलब. और यस, देयर लेकिन इज बहुत सी अनदर सोसाइटीज में ये माइंडसेट. होता है। There is another mindset that some of the you must have encountered with some people around you that they say कि भाई हमारा तो बिजनेस है अब्बा का, हमें वो संभालना है, हमें जी बाहर पढ़ने का क्या फायदा. जी एग्जैक्टली। यही यस। बोलने वाली थी। है ना, हमें जॉब नहीं करनी है. तो जॉब नहीं आपने देखा करनी। होगा कि देयर आर मल्टीपल बिजनेसमैन हु आल्सो स्टडी. और अब तो मैं देख रही हूँ अपने मेमन कम्युनिटी जो हमारे यहाँ की है उसके अंदर दे आर वेरी एफिशिएंट बिजनेसमैन.
जो कि एक अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। और अब जो है ना, आप अगर अपने अतराफ में देखें तो जो सीए और एसीसीए है, सीमा है, आईसीएम में है, इसके अंदर मेमन्स जो हैं वो उनके जो यानी कि उनके जो क्या कहते हैं आपके लड़के वगैरह जो होते हैं ना, मतलब उनके जो न्यू जनरेशन है, वो दे आर टेकिंग द डिग्रीज। और ये इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज यू नो एडवांसमेंट हैज शिफ्टेड। अब वो वही आउटडेटेड मेथड नहीं आएगा। इफ यू वांट टू you know expand your business, if you want to carry on your business, so you need to be educated as well. So there are multiple tactics, there are multiple strategies you can apply on developing your own business. So they have realized this thing and it's a very good thing कि मैंने देखा है अतराफ में, मतलब I have personally एक्सपीरियंस के अब जो माइंडसेट है वो काफ़ी, जो लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन कि भाई सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, बट देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन पीपल जो कहते हैं कि भाई जब हमारे पास जमा जमा बिजनेस है तो वाई टू स्टडी। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि भाई बच्चों के लेफ्ट आउट। हैव यू एवर सीन दैट ड्रॉप आउट रेट? आपने अगर कभी किसी से पूछो अतराफ में तो वो लोग कहते हैं, अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, अच्छे से मुराद ये है कि मैं बिल्कुल लोअर कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, समटाइम्स इन द मिडिल क्लास ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन सम पीपल अराउंड यू कि जो कहते हैं हमने 8वीं जमात तक पढ़ा है, हमने 9वीं जमात तक या मैट्रिक तक किया है हमने, तो व्हाट इज दिस 8वीं जमात एंड व्हाट इज दिस 7th या 7वीं जमात और मैट्रिक जस्ट ना। तो तो इसका मतलब क्या है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स क्या है, दे कैरी आउट देयर स्टडी प्रोसेस, बट इन बिटवीन दे लेफ्ट आउट इन इन समवेयर एट सम स्टेज। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी एक रीजन फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, ये हमने अपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस तो की है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के बाहर लिखा है। तो ये जो ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। और ये जो ड्रॉप यानी कि अक्सर लोग इंटर करके छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोगों को, मैंने भी देखा है ऐसे लोगों को, they were good in their till their school life or in their school life till their matriculation, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट नहीं किया। बहुत हार्डली अगर कर लिया तो जस्ट क्या नाम है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और जस्ट बीए पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 देकर बैठ गए, या सेकेंड ईयर भी कर लिया, तो इट्स नॉट द प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है। किसी का माइक खुला हुआ है? और मैमा प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, सो hold on. Yes, low graduation rates in urban areas. Why it's a problem? Education is the backbone of society. If we don't focus on, if we don't realize this problem, then the economy of the society may get worse. If too few people are graduating from the schools in America's cities, decay is sure to set in. Decay means it would definitely be a ruin to the society. It will definitely be a damage to the society, क्योंकि फिर वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो जो हमारा वो करता है। अब आप नहीं देखते ना कि हाँ, हमारे पास क्वालिटी बेस्ड टीचर्स नहीं होते। आप स्कूल के अंदर कहाँ देखते हैं कि स्कूल्स के अंदर तो बल्कि टीचर्स समटाइम्स उस तरह के टीचर्स होते हैं कि जो स्टूडेंट्स को इतना डिस्करेज कर देते हैं कि वो अम्मा अब्बा के जोर जबरदस्ती तो आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनका मोटिवेशनल फैक्टर जीरो हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्लास में जाएंगे तो उनको जो है ना वो टीचर जो है वो बुरी तरह से डिस्करेज ही करेगी। तो देयर आर सर्टेन टीचर्स जिनका फॉल्ट, टीचर्स के ऊपर भी बहुत फॉल्ट। मैं तो पर्सनली आई हैव नोटिस सो मेनी टीचर्स इन स्कूल्स कि जो है बच्चों को बहुत बुरी तरह से डील करते हैं, और जो बहुत बुरी तरह की डीलिंग होती है वो उनके कहीं ना कहीं दिमाग में रिटेन करती है, जिससे वो एजुकेशन को एक बुरी चीज समझने लगते हैं। मतलब उनके अंदर पर्सनल मोटिवेशन नहीं होती।
सोल्यूशन वन क्या है इसका? मेक सिटीज एंड अर्बन एरियाज मोर रिस्पेक्टेबल, क्लीन अप द स्ट्रीट्स एंड गेट रिड ऑफ द क्राइम। पहली चीज तो ये कि उनको कोई मोटिवेशन नजर नहीं आनी चाहिए कि दे कैन डू एनी एनी अदर थिंग ऑल्सो। क्राइम के भी जरिए उनको उनका गुजर बसर हो सकता है। डोंट गिव किड्स एक्सक्यूजेस टू ड्रॉप आउट अर्ली बिकॉज अपॉर्चुनिटीज सीम मोर रियलिस्टिक आउट इन द स्ट्रीट्स। don't let your children, don't let the kids to drop their studies, their education in between until they do their graduation. So it must be a must thing to do. Solution two, give schools greater access to technology so that students are learning relevant 21st century skills. In other words, give them a reason to want to stay in a school. Sometimes it happens. अब आप देखें, अभी का तो पैंडमिक का तो बेचारे का अलग ही सिस्टम हो गया है। अब तो एवरीवन, यानी कि अब तो पेरेंट्स खुद कहते हैं कि भाई मोबाइल यूज करो और अपने गूगल क्लासरूम देख लो और अपना फला होमवर्क देख लो, यानी को दे प्रोवाइड दीज गैजेट्स टू देम। और अब तो खरीदा भी बहुत जा रहे हैं ना बच्चों के लिए। अब इफ a family has 3 or 4 children, so they have bought certain devices. अब वो तो अलग चीज है, बट इससे पहले वाली पैंडमिक से पहले वाली सिचुएशन ये तो उसको सिर्फ एक एक टूल ऑफ एंजॉयमेंट देखा जाता था, मतलब यानी कि मोबाइल फोन्स वगैरह को। तो अगर आप उन मोबाइल फोन्स को, उस टेक्नोलॉजी को अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करेंगे फॉर सर्चिंग पर्पस, फॉर गेमिंग पर्पस, तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स फील मोर इन्वॉल्व विद देयर स्टडीज। दे डोंट फील अलूफ कि भाई हमारी जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है और हमारी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह की चीज़ों से भी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट, मेक ग्रेजुएटिंग अ बिगर डील। कल्चरली स्पीकिंग, ये अमेरिका के डोमेन में बात हुई है, द मोर एम्फेसिस कम्युनिटीज पुट ऑन इट, द मोर किड्स विल परस्यू इट। इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड that if somebody does the graduation, so he must be encouraged that he has done something extraordinary. He has put some effort in doing something, in attaining something, unlike कि बस हाँ कर लिया। तो अगर उसको ये लगेगा कि he has contributed, he has done something which cannot be done by everyone, and which is a milestone. So he and then the students, then the upcoming generation would feel interest in completing and pursuing that thing in their life. ठीक है। तो दे कुड बी मल्टीपल सोल्यूशन। अब ये तो हमारी अमेरिका के डोमेन में थी। यू कैन कम अप विद द डिफरेंट सोल्यूशन जो कि आपने रिकमेंड किए इससे पहले। Another problem, drug abuse. This is also one of the problem in our society. ठीक है। अब इस तरह की problems आपको आपके पेपर में भी आ सकती हैं। तो you need to first of all analyze that what is the impact of that problem, what are the causes of that problem, and then you put on some solutions. I'm just reading it. Opioids and heroin are taking the lives of so many people today. Addiction has reached epidemic proportions. Once addicted, many are hooked for life. अब वो क्या करेंगे? Because it is directly, the taking of the drug has directly impacted the lives of the people. Not only the life of the person who is taking it, but also the lives of the other people who are around that person who is taking the drugs. Why? Because वो लेता है तो फिर होता है ना कि वो अपने आपको पता है कि वो he becomes a ruin to his family. उसको he wants to take the drugs by any means. He started doing crimes. He started abusing his own family members. The person whoever he is, चाहे वो किसी भी, अच्छा जरूरी नहीं है कि अपर क्लास का, मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का, किसी भी डोमेन का हो, he becomes a ruin to his family. ठीक है। और इससे समटाइम्स आपको पता होगा ओवरडोसेस से डेथ भी हो जाती है। एंड यहाँ पर हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो इन ड्रग्स एडिक्टिव्स को तो पुलिस भी नहीं लेके जाती, बिकॉज दे थिंक कि भाई ये तो ऐसे ही चर्च पी के जो है वो साइड में पड़ जाएगा, बस ये तो हमारे लिए और बोझ हो जाएगा क्योंकि हमें इनको खाना खिलाना पड़ता है। Sometimes they take these types of people in the jails and in the prison, and then they themselves they make them free
because they are unable to, they say कि भाई we don't have enough resources to take care of these people, and they only occupy our spaces and they only consume our resources. तो उनको भी वो छोड़ देते हैं। जो हमारे यहाँ अक्सर देखा होगा ना, पुल और ब्रिजेस के नीचे बैठे हुए होते हैं, ड्रग्स एडिक्टिव्स होते हैं, और ये सोसाइटी के लिए भी रुइन है। ये क्या करते हैं, ये जो है वो कार्स की बैटरीज चोरी कर रहे हैं और गटरों के ढक्कन चोरी कर रहे हैं। मतलब इस तरह की ये चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट देयर ड्रग्स by any means. So how could it be solved? How could this problem can be solved by the authoritative person? कि भाई आ कहाँ से रही है, ये इनको दे कौन रहा है, ये खरीद कहाँ से रहे हैं, because it's illegal in our society. लेकिन there are certain countries जहाँ पे लीगल है, उनकी बात ही करें। अगर हमारे जैसे कंट्रीज में जहाँ पर ड्रग्स जो है वो इलीगल कंसीडर की जाती है, तो वहाँ पर आप चेक एंड बैलेंस रखें प्रॉपर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने पता होगा कि जो जो ये नशा होता है ये बहुत सारी तरह से होता है। Let's suppose if we take the example of the sleeping pill, some people used to take it just to relax themselves. However, it is not recommended by their medical practitioner. तो आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे ले सकते हैं? बट हियर वी कैन इजीली गेट एक्सेस टू दीज काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, नॉट मेडिसिन बट द ड्रग्स। अब एल्प है या जेनेक्स है या इस तरह की कितनी सारी मेडिसिन है जो कि आप बगैर किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के जाएं और मेडिकल स्टोर से ले लें। कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, वो भी ऐसा ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं कि भाई किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए। अदरवाइज in international countries it does not happen. Even you only get the Panadol, आप एंटीबायोटिक्स तक नहीं खरीद सकते बगैर किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के। हमारे यहाँ यह होता है कि कुछ भी खरीद लो, जो भी दिल चाहता है, एक से नहीं दूसरे से मिल जाएगी, दूसरे से नहीं तीसरे से मिल जाएगी। कुछ नहीं है तो आप बता दो अम्मी के लिए लेना है, बस खत्म बात। हाँ, आप आराम से ले सकते हैं। तो yes, so there could be multiple solution. अब check and balance अगर होगा तो the problems can be avoided. डेथ पेनल्टी फॉर ऑल ड्रग्स ट्रैफिकर्स मीन्स जो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिनके पास जो इलीगल चैनल्स हैं उनको 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 डेथ, क्योंकि बिकॉज दे आर रूइनिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, दे आर अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल डायरेक्टली, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई डेथ पेनल्टी, मतलब डेथ पेनल्टी ना भी हो तो कम से कम उनको इम्प्रिजनमेंट जरूर हो। Stop allowing pharmaceutical industries to mass market such powerful opiates. Pharmaceutical industries को they should be restricted to market such powerful drugs. ठीक है। अब वो जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना वो हमारी सोसाइटी में सर्कुलेट करेगा। तो देयर मस्ट बी द स्पेसिफिक or you can say that allowance or production should be monitored. Third solution, they have proposed that drugs that are needed for medical purposes should be carefully regulated with much more stringent rules than are enforced today. तो मेडिकल पर्पस के लिए भी जो इस्तेमाल होती हैं, बिकॉज दे आर नेसेसरी। आपको पता होगा कि सम पीपल से कि भाई मेडिकल में भी दी जाती हैं, ड्रग्स को कहा जाता है। देखिए मेडिसिन ही होती है एक्चुअली, वो बाद में वो ड्रग्स इसलिए हो जाती है बिकॉज द पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, देन वी कॉल इट द ड्रग। ड्रग का मतलब ही ये होता है कि जिसके बगैर आप रह ना सके। तो इसको भी कंट्रोल करना चाहिए कि मेडिकल पर्पसेस के लिए भी उसमें रेगुलेशन प्रॉपर हो, ठीक है। Okay, this is the last slide. I will be providing you this slide after your assignment, and you need to write an essay on following the same way, and by prescribing a particular problem. Now write a problem and solution essay, and what you need to write it, that think of a problem in a school or community such as lunchroom or crowding or a dangerous intersection near an elementary school. Write an essay explaining the problem and proposing solutions. So you need to identify one of these problems in your surrounding, and then you need to highlight that problem, and then need to tell, or you need to just include the causes of the problem, and then propose some
solutions to it. What would be the purpose behind your writing? To explain a problem and propose a solution. So whenever this type of question come in exam, your purpose should be designed before writing. And who would be the audience? Someone who might be able to solve the problem, because you are proposing the solution. So the solution would not be to the common layman. अब आप मुझे अगर लिख के दे रहे हैं तो it would be definitely a called a sample. लेकिन if you are writing in your real life, or if you are writing the particular essay to address a particular problem, so you must write that problem to the authoritative person who has the ability to solve that problem. ठीक है ना, वो आप ऐसे ही तो नहीं लिखेंगे ना. Your purpose must be to sort out that problem, to solve that problem by giving possible solution. What would be the length? 2 to 3 paragraphs. 2 to 3, not the 2 to 3. If you are including an introductory and the concluding paragraph, it may end up with 5 paragraphs altogether. So it must not exceed by 250 words, 250 or 300 words, not more than that. आपको पता है अगर if you are writing so much, so do go only for the quality, not for the quantity. ठीक है, हमें पेजेस नहीं भरने, हमें अच्छा लिखना है. Here we end with this. ठीक है, वैसे असाइनमेंट का कब तक बताएंगे? हाँ अभी बता देती हूँ मैं असाइनमेंट का. असाइनमेंट में the first question is मैं देखती हूँ जरा क्या है. Let me open it first. पैराग्राफ लिखना है. Let me tell you. Yes, the first question is that you need to develop the following topic sentence into a paragraph with the help of supporting details. Okay, now you need to write a paragraph of 150 words. ठीक है, 150 words लिखने हैं paragraph में. पैराग्राफ का राइटिंग का मतलब ये होता है कि यू डोंट नीड टू चेंज द पैराग्राफ. पहली चीज, अगर किसी ने एक पैराग्राफ राइटिंग के अंदर 2 पैराग्राफ लिख दिए तो आपका आंसर 0 है, यानी कि आपके मार्क्स 0 है. अब जो लिखा हुआ है टॉपिक सेंटेंस, तो यू नीड टू स्टार्ट योर पैराग्राफ विद दिस टॉपिक. ठीक है, पहली सेंटेंस ये होगा एंड देन यू कैन कंटिन्यू राइटिंग अ पैराग्राफ. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. What are the supporting details? Because you are writing on this idea, so you need to support your writing. अब morality लिखा हुआ है, morality plays a significant role in lowering the crime rates. Yes, it is. If you have the moral values, you can you cannot do any crime. हमें क्या चीज रोकती है क्राइम रोकने? हमें क्या चीज रोकती है कोई भी क्राइम करने के लिए? एक मोरल वैल्यू ना, जो हमारी सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमें दी है. भाई हम भी चाहते हैं कि हम किसी को जो है वो किसी भी तरह का कोई झूठ बोल दें या क्राइम से मुराद चोरी कर लें. लेट्स सपोज भाई मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, मेरी मर्जी, मेरे साथ बराबर में मेरे स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसके पास बहुत ही कोई खूबसूरत जो है वो लेट्स सपोज पेन है, पार्कर का पेन है, तो मैं चाहती हूँ उसको चोरी कर लूँ, लेट्स सपोज. तो व्हाट इनहिबिट्स मी इज माय मोरल वैल्यू. ऐसे ही है ना, इस्लाम को या अपनी टीचिंग्स को असाइड रखकर भी अगर हम कहें तो जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं वो हमें क्या करती हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, हमें रोकती हैं इस तरह के एक्शंस करने को. ठीक है, तो अच्छा मैम, ये जो पैराग्राफ है मतलब ये इस लाइन से शुरू करना है? एग्जैक्टली, दिस इज द टॉपिक सेंटेंस. Yes, अच्छा, मैं okay. आपको सिर्फ ये बता रही हूँ अभी तो, लेकिन जाहिर सी बात है आई विल बी टीचिंग यू दीज थिंग्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. लेकिन बिफोर दैट यू नीड टू सबमिट इट. That is why I am just explaining you a bit, and I will be checking your assignment not on the basis of these things appropriately, but the meaning कि आपका जो भी writing हो that should have complex compound structures or grammatical error free होना चाहिए. बस ये चीज़ों को focus कीजिएगा, बाकी कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह से बोला जैसे
जैसे ऐसे लिखते थे बस उसी अभी इसी तरीके से बिल्कुल लिखना है। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन पैराग्राफ में एक पैराग्राफ लिखना है, जस्ट वन पैराग्राफ, एंड जी प्लीज ठीक डू है। नॉट कॉपी द थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, ठीक है प्लीज। Okay. Another question is that you need to write an essay of 250 to 300 words, जिसके अंदर 5 पैराग्राफ्स, और 5 पैराग्राफ समटाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आप क्योंकि अगर आप 5 पैराग्राफ्स के ऊपर जाएंगे तो आपके फिर 300 से भी ऊपर जा सकते हैं वर्ड्स। तो अगर आपके 4 पैराग्राफ्स बन रहे हैं ना, यानी कि 1 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड द लास्ट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, तो आप बीच के जो पैराग्राफ्स हैं वो 3 की जगह 2 कर सकते हैं, ठीक है। जी अच्छा, अब ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स हैविंग अ विविड एंड क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट? आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ आइडिया, आप उसको कोशिश कीजिएगा डालने की, लेकिन अगर वो नहीं अच्छी बनेगी तो आई वोंट डिडक्ट द मार्क्स, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस जिसके अंदर आपके पूरे एसे का मेन आइडिया आ रहा हो, ठीक है, मेन आइडिया। उसमें आपको जैसे हमारे ऊपर में टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ है, ऐसे ऐसे का थीसिस स्टेटमेंट होती है, यानी कि एक सेंटेंस होता है जो आपके पूरे 300 वर्ड्स को कवर करेगा, यानी कि जो भी आप कहेंगे या जो भी आप सेंटेंस बताएंगे ना, वो उस सेंटेंस से लिंक कर रहा होगा, मेन आइडिया आपका, ठीक है। और टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंसेस क्या है? हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस। तो उसको जब भी आप पैराग्राफ 2 पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं आप, नॉट द इंट्रोडक्टरी नॉट द कंक्लूडिंग पैराग्राफ बट द बॉडी पैराग्राफ्स, वो स्टार्ट होते हैं टॉपिक सेंटेंस से, जो कि उस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है। और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या मतलब? वही जो आप पैराग्राफ के अंदर आप जिस चीज को इलाबोरेट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको एक आइडिया जैसे लिखा हुआ है साइंटिफिक जर्नलिज्म के हवाले से, या सिंगल ब्लॉगर्स वर्सेस मीडिया कंपनीज, तो अगर आप ये लिखा हुआ है तो उसके अंदर अगर आपको ये पर्टिकुलर आइडिया पहले पैराग्राफ में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले उसका टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे और फिर उसकी डिटेल्स देंगे कि भाई दिस आइडिया हैज दिस एग्जाम्पल, जैसे हम एकेडमिक राइटिंग के अंदर करते हैं। और फिर उसके अंदर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस डालेंगे, ये दिस इज द प्रूविंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने आपसे ये कहा है कि अभी इसको कोशिश कीजिएगा इस अप्रोच को फॉलो करने की, अगर नहीं होता है तो जस्ट राइट एन एसे ऑन योर ओन। और इन दोनों में से कोई सा भी एक टॉपिक लेना है। अब 10 मिनट रह गए, होल्ड ऑन। सिंगल ब्लॉगर्स वर्सेस मीडिया कंपनीज, साइंटिफिक जर्नलिज्म। अब साइंटिफिक जर्नलिज्म लिखना चाहते हैं, अब whenever you start the essay please read something on these topics। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे आइडियाज आएंगे, लेकिन उस रीडिंग का मतलब कतई ये नहीं है कि आप कॉपी करें। अगर कॉपी करते हैं तो मुझे पता चल जाता है, तो प्लीज डोंट कॉपी। कॉपी करने पे मैं मार्क्स काटूंगी, गलतियां आपके अपनी बेसिस पे हो रही हैं तो नाम नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा मैम, जो आपने बताया थीसिस स्टेटमेंट, वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन में डालना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होगी, एग्जैक्टली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होगी, बट इट डजंट मीन कि वो जो है क्या कहते हैं कि पहला सेंटेंस हो, इट डजंट मीन दैट। तो आप मतलब पहले आपको खुद पैराग्राफ गैस में करना है। तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में होगी, ठीक है। एक एक नहीं दफा तो और मतलब बताइए। हमें कोई पार्टिकुलर मतलब हमें मेंशन करना होगा कि ये नहीं थीसिस नहीं नहीं स्टेटमेंट नहीं है। नहीं नहीं, डू नॉट नीड टू हाईलाइट इट, डू नॉट नीड टू ओके अंडरलाइन इट, डू नॉट नीड टू राइट इन द कैपिटल लेटर, ठीक है। ये बस सिर्फ वहीं कहीं आप खुद ही से लिख दीजिएगा। अगर आपने इफेक्टिव लिखी होगी तो मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा, अगर नहीं लिखी होगी तो डजंट मैटर, ओके मैम। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी मिस, टाइम डेडलाइन बढ़ा दें। नहीं बेटा, वो तो ना हमारी तरफ से नहीं है, एक्चुअली वी वर आस्क्ड टू कंपोज। मिस मैंने सर को भी मैसेज किया था और उन्होंने सीन करके छोड़ दिया। हाँ, वो असल में सबको ही इतने मिले हुए हैं ना, एक्चुअली एवरीबडी हैज गॉट दिस डेडलाइन along with this number of assignment। मुझे पता है कि थोड़ा टाइम कम है, लेकिन ट्राई टू डू इट विद इन द टाइम। और हम कर सकते हैं जब भी हम कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जब हम पे डंडे पड़ते हैं ना,
तो हम उसको कर लेते हैं। यस आई एम तो ये आप केयू में सबमिट हो गई असाइनमेंट? no not KU but your marks, the 40 marks from the institution would be awarded on the basis of these assignments. मैम एंड टाइम तक बल्कि नेक्स्ट सेमेस्टर तक भी बच्चे सबमिट करा रहे होते हैं असाइनमेंट्स। उनको तो ये छोड़ इनकी देना। कोई डेडलाइन होती ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरी बात सुने लाइबा, बिल्कुल ऐसा होता होगा, लेकिन आपको नहीं लगता क्या उनके बच्चों के मार्क्स अफेक्ट होते होंगे? ऐसी बात नहीं है। नहीं होते मैम, कुछ नहीं होता मैम उनका। नहीं होते, यहाँ पे रमेश गधे थोड़े मैम खेत इनको जैसे। मिल जाते हैं। अरे ये एक डेडलाइन बात सिर्फ उनके लिए है जो डेडलाइन सीरियसली लेते हैं। बात सही है, बात सही है, आई एग्री विद यू पीपल, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एक आइडिया बता रही हूँ कि अगर कोई भी यानी कि बोझ समझ के या कोई मेहनत करके काम करता है ना, तो उसका डेफिनेटली यहाँ नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, आपके पेपर में जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो उस बंदे में और आप में कोई फर्क नहीं होगा कि जो जिन्होंने कोई क्लास नहीं लेते या जो पढ़ाई को बहुत मतलब नॉन सीरियसनेस के साथ ले रहे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अल्टीमेटली इफेक्ट बहुत पड़ता है, आप चाहे नंबरों पे पढ़े, चाहे स्किल्स पे पढ़े, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में पढ़े, लेकिन एक सिग्निफिकेंट फ़र्क आप देखते हैं एक ढंग से पढ़ने वाले स्टूडेंट को, जो डेडलाइंस को, जो पंक्चुअलिटी को, जो प्रेजेंस को या एफर्ट्स के साथ काम कर रहा होता है। ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ इस बात की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको यानी कि यूजुअल बेसिस के ऊपर यही नज़र आता होगा कि जब रिजल्ट आता है तो इंटरनल मार्क्स सबके ही 2-4 नंबरों के फ़र्क से होते हैं। आई डू अग्री विद यू, लेकिन क्या एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम नहीं होती होगी? या चलें एग्जामिनेशन हॉल में भी लेट्स सपोज उनके मार्क्स आप ही के ही अराउंड आ गए, यानी कि दोनों मार्क्स, लेकिन आपको स्किल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है, और यही चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। अभी देखिएगा आप आगे क्या होता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को कोई अब्यूज़ कर रही हूँ या मैं किसी को कोई गलत बात कह रही हूँ, लेकिन ये आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप में या किसी भी ऐसे स्टूडेंट में जो एफर्ट दे रहा होता है उसमें, और एक ऐसा बंदा कि जिसने आंखें मलकर ही पूरा का पूरा सेमेस्टर्स या पूरे के पूरे ईयर्स गुजार दी हों, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ऐसी बात नहीं होती है। फिर उन लोगों को पूरा उस गैप को कवर करने के लिए ना, या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो वो खुद बेहतर जानते हैं, या फिर वो उसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि भाई उनकी कैपेसिटी इतनी है। मैम वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो डेडलाइन में थोड़ी लीनियंसी तो देनी चाहिए ना उन बच्चों को जो कि बाकी कर रहे हैं। ये बात है, लेकिन ना आप ये चीज़ तो ये है ना कि आप यू कैन राइट एन एप्लीकेशन और फिर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप बात कर सकते इनसे हैं। बोला जाए तो ये बोलते हैं आप 1000 बार आए, 1000 बार आपकी बात सुनेंगे, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे, होता तो कुछ नहीं। अच्छा मैं वैसे मैंने इसी वजह से ग्रुप पर मैसेज किया था कि वो सर उस बेचारी का भी इग्नोर कर दिया, अब मतलब वाह। सर ने मुझे अलग से बता दिया कि ये रीजन है, आप सर को बोल दें। मैंने सर को बोला, उन्होंने सीन करके छोड़ दिया।